create 4 groups of say 5 persons each or 6 person each. हर ग्रुप एक एक स्टाइल यूज करेगा. So group 1, imagine. I'll just show you. Second is bilingual method. Bilingual method means using bilingual voice over with same visual. Visual same है. There is same video, but voice over एक video with Hindi background voice over. Same video, same characters with English voice over. So अगर आप बच्चों को या अपने स्टूडेंट्स को, whether they are adults or students, youngsters, मान लीजिए हिंदी में आपने 2 मिनट का वीडियो दिखाया, then you repeat same video but with English voice over. तो comprehension improves, है ना? वो words अगर वो user समझ में भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि video is same, तो the user or the student at least captures some English words, makes sense out of it. So that is what is called the bilingual method. Third method is the activity based. उसमें जो content है that involves some games. At the same time, using that game, you learn a language or a subject. Not necessarily English. You can learn maths, you can learn science through activity based. Then these can be simulations. I'll just show you simulation क्या होता है. Simulation is जहाँ पे आप actually content के साथ content को change कर सकते हो. As a training, आप actually जैसे अगर बीकर में पानी डालना है या 2 mixtures mix करना है, you can actually do it. The fourth is curriculum structure, जो normal schools में curriculum follow करते हैं. जैसे मान लीजिए English का है, अगर हम ये एक style अपनाएं, so it will start with what? It will start with alphabets, then word play, which is creating words out of alphabet, then sentence formation, which is using words to make sentences, and comprehension, collecting those sentences or reading those sentences to understand. Comprehension means to understand. And finally the grammar part. So ये जो normal schools में, whether it is CBSE, school board or NIOS, एक structure follow करते हैं. So एक style, the fourth style is the curriculum structure. Or other style is particularly for English. You just focus on listening and watching, reading and writing, and speaking. So there are 3 aspects of learning English. One is listening, reading, and speaking. And obviously reading is the writing and listening is the watching it. So these are some styles. Now we will use the e-library to call out that. जैसे आपने मान लीजिए अपने सेंटर में यूजर को समझाना है, and you are following not necessarily only one, different styles. आप एक हफ्ते ये वाला स्टाइल यूज कीजिए, दूसरे हफ्ते एक्टिविटी करवाइए, तीसरे हफ्ते स्ट्रक्चर फॉलो कीजिए, whatever is convenient to you. Aim is that they should be using maximum content so as to clear more concepts. यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स दिए जो आप लाइब्रेरी से डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, वरना टाइम अभी लग जाएगा. सो यू कैन डायरेक्टली गो टू द लाइब्रेरी. लाइक सपोज यहाँ पे लाइब्रेरी था, तो लाइब्रेरी को एक्सेस करने के लिए देयर विल बी अ लॉगिन एंड पासवर्ड which I have already entered. So Gin library खुलेगी. What was I mentioning? जैसे यहाँ पे जो हमने लिंक्स दिए, जैसे 1704 है, so we'll directly we can use one of the filters. जो यहाँ पे लिंक आएगी, I'll just write 1704, तो ये डायरेक्टली नीचे 1704 आ गया, and I'll just click this link. So it will lead to an LMS, जो मैंने बताया first time, Learning Management System. So this is a web-based application, web-based LMS called Duolingo. So इसमें हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी, you can actually use it, and it will keep a track. जब आप लॉगिन करोगे, it will keep a track कि आज आपने 3rd चैप्टर तक या किसी ने भी बच्चे ने या आपने किया, अगर उसमें डिफिकल्टी हो, it will automatically repeat that chapter. It's a very interesting and very powerful application, Duolingo.
So प्रॉब्लम ये है कि अब हिंदी भी लिखनी है और इंग्लिश भी लिखनी है. So that I'll show you कैसे करना है. So similarly, if we go to next link, जैसे ये है bilingual method. I'll just show you an example of bilingual. Okay, just have a look at it. Now these are two link IDs. Now आपको विंडोज और टैब का मालूम है? How do you change the window? Short keys. जैसे ये एक विंडो है, ठीक है? इस विंडो के अंदर टैब्स हैं जो कि यूज नहीं की. These are tabs. Tab 1, tab 2, tab 3. And if you do Alt and Tab, you change another window. These are two windows in the same browser, of the same browser. Two windows, not tabs. तो एक विंडो से दूसरे विंडो में जाने के लिए शॉर्ट की क्या है? Alt और tab. टैब. That you should know the Alt tab. लिखो बेटे. तो की Alt है, Alt की plus Tab की. This is for changing the windows, and changing the tabs is Control key and the number. Control 1. Control 1, Control 2, I'm doing it. अगर आप Control 3 करोगे तो सेम विंडो में तीसरा टैब खुलेगा. तो these are short keys, क्योंकि अगर आपने काफी यूज करना है, जैसे सपोज मैं करता हूँ क्लास में, तो I keep on changing. Alt tab, Control, हर एक डिफरेंट टाइप के, जैसे एक जगह लाइब्रेरी खोली, एक जगह उसका वीडियो खोला. So you can note down these two. These are very important, easy to remember. जैसे अभी मैं कर रहा हूँ. And now let us, I will just show you an example of this bilingual method. अगर आप जैसे ही ये है, तो what will you do? Link ID में वो लिखो. 2362 is the link ID. 2362 आपने यहाँ लिख दिया. अब अपने उसको इधर ट्राई कीजिए. So let's make a group. आप अपने Show computer को से कर दो. So 2362 खुल गया है. आप अपने कंप्यूटर पे देख लीजिए and just अभी रुक जाइए. Now this is, these are story based. Last one maths के वीडियो. Okay. So first, second. एक विंडो में आप 2362 करेंगे, एक में 2379. एक टैब है, either in two different tabs or two different windows, whatever is convenient for you. 2379. मैंने दो अलग-अलग विंडोज खोले. एक में मैंने एक लिंक यूज किया which is basically same content but in Hindi. Now I'll actually show you कितना powerful है. Let me start with this. This is a particular video. So what I do, this will train you. मैं हूँ फुट्टा. तुम सब. ये अब एक particular video है which is of 16 minutes. This is in Hindi. I press Alt tab. दूसरा विंडो खोल दिया. Same video but in English. Help. Who is? Again I select. Let's meet Meenu. Guest. So this is first video of this playlist. मैंने ये क्लिक किया ना. Let's meet Meenu, Chinu and Buzz. Alt tab. यही वीडियो Let's meet Meenu, Chinu and Buzz in Hindi. Now just see. I am just showing you an example of bilingual method. इसको मैं मैक्सिमाइज करता हूँ और इस वीडियो को मैं चलाता हूँ.
अभी हिंदी में वीडियो मान लीजिए मैंने 1 मिनट चलाया, मगर तुम अब तक कहाँ थी? मैं चीनू के बस्ते के अंदर ही था। मैं कूद कर बाहर आ गया। तो अब तो मैंने स्टॉप किया है, स्पेस बार से शॉर्ट, स्पेस बार ऑल टाइप किया, सेम वीडियो इंग्लिश में चलाया। मीनू, मीनू, help, help. Who is this? Who are you? So this is an example of style 2 which is using bilingual method. एक विंडो में आपने हिंदी का चलाया, सेम वीडियो आपने इंग्लिश में चलाया, तो जो स्टूडेंट है, यूजर है, he will start comprehending क्योंकि एनिमेशन इज सेम, कैरेक्टर इज सेम, वीडियो इज सेम, स्टोरी इज सेम, he will automatically comprehend the English part. This we will do in a group exercise now. So this was an example of first type which was using a which is a Duolingo is a LMS web based. इसमें भी अभी जब हम एक्चुअली ग्रुप में यूज करेंगे, इसमें जब आप आगे इसको एक्चुअली चलाएंगे, इट विल आस्क टू टाइप इन हिंदी, और हिंदी में कैसे टाइप करोगे? यूनिकोड है सर इसके, यूनिकोड टाइप होता है। पढ़ो हिंदी में यूनिकोड। हाँ, वही मैं कह रहा था। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो लाइब्रेरी में हमने दिया, उसका भी रिसोर्स है, सब कुछ है, जैसे आपको मालूम है सब कुछ नेट पे जी। हिंदी में कैसे लिखना है, सब कुछ है, वो हमने लाइब्रेरी में रख दिया। कैसे नाउ यू विल यूज इट। अभी जूम आउट करते ये 187 बन चुका है, ये टाइम कम है, वरना आप इसको यहाँ कीवर्ड में लिख सकते हो, टाइप राइट इन हिंदी, तो लाइब्रेरी दिखाएगा आपको कौन सा लिंक है। अभी हमने यहाँ लिखा है 187 मान जाए, जस्ट 187 लाइब्रेरी से आपने क्लिक किया, थोड़ा हल्का कम कर देता हूँ मैं साइज, वरना काफी स्क्रॉलिंग हो जाता है। ये जो है 187 ये जो लिंक है, यू क्लिक इट, दिस इज सिंपली गूगल ट्रांसलेटर इन हिंदी। से इनपुट टूल, जैसे आप यहाँ मान लो लिखो, आपने लिखना है, आपने हिंदी में लिखना है, हिंदी ट्रांसक्रिप्ट होगा सर इसमें। हाँ। जैसे मैं वहाँ, लिख रहा हूँ, जैसे मैं, आप जो बोलते जाइए, मैं वहाँ जा रहा था, मैं WAHA वहाँ जा, ये टू जा, जे जा रहा, RAHA। जी जी जी, हम लोग ट्रांसलेट भी करते हैं। तो आप इंग्लिश फोनेटिक्स में टाइप करोगे, देना आप इसको यहाँ कॉपी, कॉपी का क्या कंट्रोल सी। Mr. Rana, excuse me. Can we practice with you on our computer? हाँ, अभी अभी वो एग्जाम्पल Because I was not able to open the नहीं, वो website. मैम अभी ग्रुप्स बनाएंगे, तो यू विल जस्ट इसको कॉपी करने के कंट्रोल सी किया, हाँ जी, ऑल टैब कंट्रोल भी कर देते हैं। ऑल टैब में जहाँ पे भी लिखना है, वहाँ लिखना है, अभी हम ये ग्रुप में करेंगे। कंट्रोल So the whole flow is Please capital, right? काफी सारे टैब्स खुल गए। तो हम बेसिकली क्या कर रहे थे, we were trying to उसको मैं थोड़ा सा zoom करता हूँ। So coming back to, since we are working on English language, we will create 4 groups. Group 1 will work on learning management system, second on bilingual method, then third on activity based। आप लाइब्रेरी से ढूंढ सकते हो, जो टाइप है उसमें एक्टिविटी ढूंढिए या अभी शॉर्ट ये लिंक्स यूज कीजिए। फोर्थ इज करिकुलम स्ट्रक्चर, उसमें भी आप अगर 2 ग्रुप बनाएंगे, एक इन टीम्स पे काम कर सकता है, एक इन टीम्स पे। एक लैपटॉप और है सर, एक लैपटॉप और है हमारा, 5 हम 5 बना सकते हैं, ये 3 और 4 में 2।
फोर्थ ग्रुप है जो स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। Either you follow this structure, उसका 4A जो है, एक ग्रुप ये स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, दूसरा ग्रुप ये स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। और इसमें हमने क्या किया कि अब लाइब्रेरी में हमने प्री-फिल्टर्ड सब्जेक्ट पेजेस भी दिए हैं। इंस्टेड ऑफ फिल्टर्स ढूंढने के बजाय आप डायरेक्टली इंग्लिश पे जाइए। कैसे आप सर्च में ऊपर लाइब्रेरी है, यहाँ पे आप डायरेक्टली सर्च लाइब्रेरी के बजाय instead of search library you click English, so you will see you have a page on English which itself has a structure. So English page में the structure is already there and directly links भी है. Now suppose you want to work on building words, these links will open videos related to word, these links will open activities related to word, and these links will open worksheet related to word. So this structure is already there. Or you want to work, जैसे आपने शायद preposition, noun, verb अभी कल परसों किया है काफी. You can actually use, just see some videos on preposition, or do some activity on preposition. ठीक है? So जो ये group जो ये follow करेगा structure, or you can directly or you can follow this also. Instead of this structure, you follow listening, reading and writing and spelling. These will be some activities and games. Anjali? Yeah. वो lesson plan का? That was you have to explain. Now, पहले group activity में that was. नहीं. Stop. Okay. Excuse me, your attention please. Now there is one more important aspect which you have to do in the group activity, which is creating your lesson plan. That is very important. जैसे आपने सेंटर में प्लान किया कि मैं इस महीने या वीकली या मंथली या क्वार्टरली, suppose in the month of October I want to teach or to the trainer or मुझे वो मालूम नहीं है जो end user, in month of October I want to teach or I want to focus on say adjective and then tense and then preposition. ये तीन चीज मैं अक्टूबर में कराऊंगी, फिर मैं नवंबर में ये तीन चार पे फोकस करूंगा. So this is your planning. So you have to create a lesson plan. How do you create? We will just show you some instruction sheet and example also. हर ग्रुप को एक lesson plan फॉर्मेट मिलेगा, उसको कैसे बनाना है और आपने एक्चुअली बनाना है अभी. जो एक सेशन 1 घंटे का सेशन होगा जिसमें ग्रुप्स काम करेंगे. एक्सक्यूज मी, अटेंशन प्लीज. ग्रुप्स में आपको एक्चुअली ई लेसन प्लान बनाना है अभी आधे घंटे में. एक छोटा सा वीडियो लीजिए, उसको कैसे बनाना है जस्ट शो यू. I've just distributed. अभी मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो अभी सर आपको बता रहे हैं उसमें लिखा क्या होगा. आप ई लेसन प्लान का फॉर्मेट खोल के पहले तो ग्रुप्स में ही बिठाऊंगा. पहले ग्रुप्स में बैठ जाते हैं. Can I have your attention? What do you want? ये जो हमने आपको एक इंस्ट्रक्शन शीट दी है, it is in English as well as in Hindi, so for ease of use, okay? But what has it to be used for? That we have to see. Any problem? You can tell me, please. Okay. So what we have to use that instruction sheet for is making a plan. Even if I refer to the previous session which we had, what was she saying? Your ma'am was saying that you need to give time to yourself to be able to learn. Exactly, right? So to give yourself time, what you need to do is go through this. This is one way of giving yourself time. If you actually decide on what topic you are going to take, what is the learning objective of that topic, so that has to be very clear in your mind before you go to practice something or to teach something. From this learning objective, you will go to the e-library and identify the link which you will use for teaching, for achieving this learning objective. ये सिखाने के लिए मेरे को कौन सी लिंक यूज करनी है.
एक्टिविटी प्लान करें। ओके, अभी जैसे सर ने वो दिखाया दिस दैट दीज एंड दोस फॉर एग्जांपल एक वीडियो, उसके लिए आपने एक एक्टिविटी प्लान करी व्हिच वाज इनबिल्ट इनटू द वीडियो। इनको मालूम था मेरे को यहाँ पे रोकना है, इसके बाद कलर्स का आएगा, इसके बाद थिंग्स का आएगा, तो मैं रोक के I will interact with my students, stop the video, interact, ask them, then take it forward. Or based on that, you could also ask them to note down things. तो उसके लिए आपको एक कोई फॉर्मेट उनको इजी सा बताना है कि कैसे करोगे, क्या नहीं करोगे। तो ये सारी प्लानिंग आपके दिमाग में पहले से होनी चाहिए बिफोर यू कैन एक्चुअली गो एंड टीच एनीबडी, किसी को भी ट्रेन करने के लिए पहले। फिर उसके बाद ये रेफरेंस पॉइंट उसी को रेफर करता है कि आप उधर कहाँ पे स्टॉप करोगे। नाउ सपोजिंग ये तो वीडियो है कि आपने इतने मिनट पे या इतने सेकंड पे वीडियो को रोक दिया। दूसरा ये हो सकता है एक वर्कशीट है, तो आपने एक वर्कशीट इस पे ढूंढ ली। अब वर्कशीट तो इंटरैक्टिव नहीं है, पर उसके लिए भी तो मैं कुछ प्लान करूंगा। मैं क्या करूंगा, और हम ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ पे शायद हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है या हम इतने प्रिंट आउट्स निकाल कर हम वर्कशीट्स दें, तो हम उसका फॉर्मेट एक बना लेंगे, बच्चों को वो सिंपल सा फॉर्मेट खोलेंगे, कॉपी पे लिखो और फिर वो वाला आपके पास रेडीमेड वर्कशीट्स आएंगी जिससे कि आप पढ़ा सकते हो। नॉट नेसेसरीली बच्चे, जिसको भी आप पढ़ा रहे हो, जिसको एंड वर्कशीट्स आप ऐसी आइडेंटिफाई करोगे जो आपको चाहिए होगी। नाउ सपोजिंग इट इज बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आप उनसे वैसे ही कोई वर्कशीट्स ढूंढोगे जो कि आप उनको लिखवाने का भी काम कर सकोगे। एक बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स का वन थिंग इज टॉकिंग, कन्वर्सेशन, द अदर थिंग इज रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स। बिजनेस स्किल्स में रिटन कम्युनिकेशन इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। ये जो हम ईमेल लिखते हैं या एप्लीकेशन, तो मैम ने बोला था एप्लीकेशन लिखने का, और दैट इज कम्स अंडर बिजनेस कम्युनिकेशन ओनली। सो उस सब के लिए भी हम कुछ प्लान करेंगे और वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमने क्या करना है, और फिर एक्चुअली क्लास में हमने कैसे किया वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये एक हमने लेसन प्लान का फॉर्मेट। अब सर एक एग्जांपल देके बताएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे ये चीज है ना, रेफरेंस पॉइंट। बेसिकली वो यू आर यूजिंग ए रिसोर्स, यू आर यूजिंग ए लिंक, तो यहाँ पे आप लिंक आईडी लिखेंगे और उस विद इन दैट लिंक, विद इन दैट वीडियो यू हैव टू बिल्ड, यू हैव टू प्लान ए लेसन। So what will you do? I'll just show you an example. मान लीजिए we are coming back to this video, this, that and these. The moment you actually have to do groundwork before using it for your students. आपने ये वीडियो यहाँ पे रोका, जहाँ पे मैंने रोका हुआ है, इसका एक रेफरेंस पॉइंट है। देखिए हर वीडियो का रेफरेंस पॉइंट है 1.38, which is basically 1 minute 38 seconds. So 1.38 पे if you मान लीजिए आपको मालूम है, लेट्स सी क्या बोल रहे हैं। These. तो आपने यहाँ पे रोक दिया। Answer those. So जैसे यहाँ पे he says answer those, which is at 1.47. तो इससे हल्का सा पहले मान लीजिए आप 1.46 पे लेसन प्लान में लिखते हो कि मैं बच्चों से पूछूंगा कि बताओ बच्चों ये these है, ये एक है या ये those है या that है, क्योंकि दोनों जब दूर है whether it is a that or those. So इस पॉइंट पे I'll ask them so as to trigger their mind. So at reference 1.7 on your lesson plan, यहाँ पे you can write 1.47. इसके आगे what is the question you want to or what activity you will do in the classroom. So write it down. So अगर आप ये ऐसे ऐसा सब फिल करोगे, it will be a very good manual for you. Not only by a day's plan, you can plan for a whole week or even a month. इस महीने में मैं I will run all these resources and for each resource at what reference point I will stop and at that reference point what activity I am planning and what Q&A. So at that reference point, what activity I have planned वो यहाँ पे लिख लो, what QA, what question I will ask,
But when you will actually run that resource or a link in the class, जरूरी नहीं कुछ और भी एक्टिविटी हो सकती, बच्चे कुछ और पूछेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हो, फिर एक्चुअल एक्टिविटी आप यहाँ लिखोगे कि एक्चुअली क्या हुआ. So all this as you collect it, it will be a very good manual for you. और whole एक तो प्लानिंग भी है और एक्चुअल जो एक्चुअल हुआ वो भी नोट, ये तो बाद में फिल होगा when you actually use it. ये पोर्शन तो प्लानिंग का है. So you can actually plan for a whole month. In this month I will start with, depending on your style of teaching. Maybe you can think, okay, I will start with noun and pronoun. Then I will teach verb and adverb. And then I will teach adjective. If you have planned it that way, so you can write on 25th of October, I will take this topic. What is my objective? वो लिख लो. हिंदी में, इंग्लिश में कैसे भी. Preferably in English, that will give you an opportunity to practice. Write down the links. What is your planned activity for using that link? What is your planned QA? Leave this blank. Then when you actually run it in the classroom, कोई नई activity होती है, note it down. So gradually this becomes your lesson plan for the whole week or a month or a quarter, depending on how you plan. So actually exercise आपने, depending on your activity and the link you have used, you have to actually now do that exercise, small exercise. You have to fill it up. एक sample sheet भी दिए, go through it. Instruction sheet दिए, go through it. कहीं पे problem है, we will just move around. We will help you also. Try to fill up this lesson plan. Okay? Using your style. Just as an example. So which group is which? This one is doing what? This is group 2, bilingual. This is group 3, which is using an activity-based link. This is LMS, which they will use Duolingo. Duolingo is just one example. There can be many more web-based LMSs or applications. Up learn Duolingo to try to use it. I'll just help you. And then you will also create lesson plans using Duolingo. And the last one. And this is using curriculum structure 4A. You did not explain the curriculum. Curriculum structure के लिए curriculum structure you can use the subject page. Just see. ऑन कर देता हूँ. ऊपर ही है लाइब्रेरी के नीचे इंग्लिश लैंग्वेज का पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है. Alphabet, word play. Now for this particular session में आपके पास कंप्यूटर है, इंटरनेट है और हम यहाँ पे बैठे हैं, तो हम वर्चुअल ई क्लास चलाएंगे. वर्चुअल मतलब थ्रू द नेट. तो उसका हम एक कैलेंडर है, कैलेंडर वेबसाइट पे होगा, तो हम प्लान करेंगे कि रीड इंडिया का फलानी सेंटर का वर्चुअल क्लास मान लीजिए बुधवार को होगा. कैलेंडर में लिखा होगा 10 बजे होगा. तो क्या करेंगे वर्चुअल क्लास में, जैसे मैंने आप लोगों ने यूज किया होगा स्काइप है या गूगल, मैंने तो गूगल यूज कर रहा हूँ. गूगल का हैंगआउट है जिसका ये बटन है. जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक बड़ा अच्छा टूल है जो गूगल क्लासरूम वाले यूज करते हैं. जैसे ये अभी इसका कैमरा ऑन हो गया तो मैं यहाँ बैठ के अपना स्क्रीन शेयर करूँगा. तो आपका जो सेंटर मान लीजिए सोनीपत में होगा, वो भी अपने कंप्यूटर के सामने बैठेंगे. मान लीजिए एक टीचर है या पूरी क्लास है या 5 टीचर्स हैं, जो भी है. तो वर्चुअल क्लास में हम एक्चुअली सेशन करेंगे. फिर हम इसमें स्क्रीन शेयर कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे जब अभी तो क्लास ज्वाइन होगी, जब एक बार ज्वाइन होगी फिर यहाँ पे बटन आएंगे जैसे स्क्रीन शेयर. तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ उसके साथ. तो जो जब मैं यहाँ लिखूंगा, जैसे मैं अभी आपको मान लीजिए कुछ चीज़ दिखा रहा था, वीडियो दिखा रहा था या मैं ड्रॉ कर रहा था, वो सोनीपत में जो सेंटर होगा उनकी स्क्रीन पे है. तो वर्चुअल क्लास चलेगी. फिर मैं जो वहाँ टीचर होगा मैं उनको कहूँगा अच्छा आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिए. आप जैसे ये लेसन आपने बनाया आप बताइए.
पर जरूरी नहीं है हम पूरे मान लीजिए रीड इंडिया गुड़गांव ऑफिस से भी उसी वर्चुअल क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और आपके 5 सेंटर हैं, हर कोई ज्वाइन कर सकता है इकट्ठे। फिर एक दिन एक सेशन ले सकता है, एक सेंटर वाले अपना दिखा सकते हैं प्रेजेंटेशन। एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने वीडियो वैसे खींचा था जस्ट टू शो एन एग्जांपल। ये फरीदाबाद में एक हमारा छोटा सा पार्टनर है, तो उनकी एक टीचर अपना ई क्लास ले रही है, तो शी शेयर्ड हर स्क्रीन विद मी। ये मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, तो ये वो क्लास ले रही है फरीदाबाद में एंड शी हैज शेयर्ड स्क्रीन विद मी एंड with some video. उसने अपना स्क्रीन जो है गूगल हैंगआउट पे भी सर्च शेयर किया। अब उसने अपना वीडियो चलाया, वो बोल भी रही थी, बोलने के बाद अपना उसने वीडियो चलाया, so I can see whatever comes in her screen. Example how we can actually do virtual class. तो we can वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे शुरू में वहाँ पे कैलेंडर होगा, तो जैसे रीड इंडिया का सेंट्रल ऑफिस ऑर्गेनाइज करेगा कि इस दिन ये सेंटर प्रेजेंट करेगा, या अगर कोई डिफिकल्टी हो पूछ सकता है कि मैंने ये लिंक ट्राई किया था लेकिन मैं यहाँ अटक गया, ये समझ नहीं आया। तो एक्चुअली स्क्रीन शेयर करके एक दूसरे को सिखा सकते हैं थ्रू वर्चुअल ई क्लास। This was just one of the components I thought I will just share. So now we can ask some groups at least. जो भी at least the people, whoever wants to volunteer will come forward. एक दो ग्रुप्स जिसने कुछ काम किया है वो आके बाकी ग्रुप समझाए क्या किया हमने, वो एक्चुअली करके दिखाएं और एक्चुअली चला के दिखाएं। Who is going to volunteer? Otherwise, we have to call. Yeah. कोई volunteer कर रहा है या we should call it? आप कर रहे हैं? आप भी कर रहे हैं? उमेश जी लाइट जला देंगे। लाइट भी खोल के रख लेता हूँ। अच्छा ठीक है। First, in your previous session, you were taught you will first introduce yourself, and then what you are going to present, and then you start. Okay? Good evening to all of you. माइक ले ले, माइक प्लीज। Good evening to all of you. Good evening. So जैसा हमारा टॉपिक हमने लिया था, so ये हमने लिया कैरिकुलम से। So वहाँ पे हमने बच्चों को हमने सिखाया नेक्स्ट डे कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में। So उसके ऊपर मैंने कैसे हमें स्टार्ट करना है, जो कि अभी हमने सिखाया सर ने। तो हम सबसे पहले लॉगिन करेंगे। So it is already login. So हम यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं क्या? First, because you are talking about pre-filtered section, you will know what he did. So they also learn. Go to the English subject. जहाँ से आपने लिख दिया, you did it ना? Go to English. हमें बच्चों को प्रोनाउन और नाउन के बारे में पढ़ाना है। तो वैसे हम जानते हैं कि ये इंग्लिश का ही चैप्टर है, तो हम यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे हमारे लिए पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा। यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करके सो दिस इज प्री फिल्टर सेक्शन है। यहाँ पे हमें दिख रहा है नाउन एंड प्रोनाउन। हम चाहेंगे यदि हमें उन्हें वीडियो के थ्रू पढ़ाना है तो वीडियो के लिंक पे हम क्लिक करेंगे। अगर एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाना है तो लिंक इसका जो है नाउन प्रोनाउन का ये लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज वर्कशीट के थ्रू हम कोई उनको काम देना, मतलब
क्लास वर्क हम उनको देंगे या फिर होमवर्क देंगे तो उसके लिए हम एक्टिविटी के थ्रू यहाँ से लिंक दे सकते हैं। अब जैसे हमने वीडियो के थ्रू दिया है, सो इसमें ये है वीडियो हमारे पास आएंगे। उससे पहले हम यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं, आपको वो हिंदी में दिखानी है बच्चों को या इंग्लिश में। सो यहाँ पे लिखा आ रहा है, एक बार मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा आ रहा है 16, सॉरी इंग्लिश में 16 है, या इंग्लिश में 16 है और हिंदी में 2 है, ठीक है। सो हिंदी पे हम जब क्लिक करते हैं तो हमारे सामने 2 लिंक आ जाएंगे, इनमें भी वीडियोस हो सकती हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं नीचे सेकंड नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे इनके कीवर्ड्स में भी आप देख सकते हैं। Yes, जैसे कीवर्ड में इसमें भी लिखा है- देख सकते हैं। इसमें लिखा है इंग्लिश ग्रामर नाउन हिंदी, तो ऊपर वाले में इस लिंक में लिखा है हाउ टू यूज apostrophe s possessive case noun in हिंदी। तो आपने ये सिलेक्ट किया, Yes. तो ये इस टैब में खुल गया, टैब तो सो वो लिंक होने के बाद ये हमारा टैब खुलेगा। ये प्लेलिस्ट था, आप देखिए वापस इस टैब ये अगर आप देखेंगे टाइप में ये वीडियो प्लेलिस्ट है, यानी इसमें काफी सारी वीडियो यहाँ है। सिर्फ एक वीडियो यहाँ होगी। सिर्फ एक वीडियो है, इसलिए अब हमने ये किया। यहाँ सेपरेट हो जाएगा, दिख जाएगा यहाँ पे काफी सारे वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पे हमारे पास ये टोटल 6 है, इनमें से हम फर्स्ट वीडियो है वो हम स्टार्ट करते हैं। दिखावट टूथपेस्ट जिसमें लौंग, अदरक, नीम, टुकड़ों जैसे लाभकारी जड़ी बूटियां। जैसे मान लीजिए शुगर है, क्या हम शुगर को काउंट कर सकते हैं? 1 2 3 ऐसे काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर मैंने आपको एक डब्बे में शुगर यहाँ से हम इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं, ठीक है। और ये स्पेस बार है और इसमें क्या आप बोल हम पॉज दे सकते हैं और इसको वापस से रिज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे हम जैसे अब ये टॉपिक है हमारा काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल, राइट। तो इसमें 4 शुगर है कि 5 शुगर? सो हम अब ये मैं हाँ, क्या है? सो हमें ये कैसे प्री प्लान करना है नेक्स्ट डे के लिए। यहाँ पे सबसे पहले डेट लिखना है, उसके बाद में टॉपिक क्या है, हम क्या पढ़ा रहे हैं, नाउन पढ़ा रहे हैं, प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं, मतलब ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं या फिर कोई हम अपोजिट वाला पढ़ा रहे हैं या जेंडर वाला पढ़ा रहे हैं, जो भी है। उसके बाद में लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हमें ये लिखना है कि हम नाउन प्रोनाउन के अंदर क्या क्या करेंगे, हम क्या बताएंगे उनको, कोई टॉपिक भी तो ऑब्जेक्टिव भी तो लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है हम उनको कल पढ़ाएंगे नो अबाउट नाउन एंड नाउन और प्रोनाउन के बारे में उनको बताएंगे। लिंक जो है हमारा अगला कॉलम हैश लिंक है, तो इसमें हम उनको कौन सा वीडियो दिखा रहे हैं, या तो वीडियो दिखा रहे हैं या कोई एक्टिविटी करा रहे हैं या कोई उनको वर्कशीट के थ्रू हम उनको सिखाएंगे। तो वो आपको यहाँ पे उसका लिंक लिखना है, लिंक वहाँ पे आ जाता है, मैं दिखा देता हूँ। ये एस्केप दबाने से आप इसको जो फुल स्क्रीन है वहाँ से आप बाहर आ सकते हैं। ये लिंक है, सो इसमें मैंने जैसे वीडियो ओपन किया, ठीक है, ये है लिंक हमारा 2614। यहाँ पे हम हमारा लिंक आईडी लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में ये प्लान एक्टिविटी है, हम क्या बताएंगे उनको, हम इसमें बताएंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि हम पहले चेक कर लेंगे कि हमें कल पढ़ाना क्या है इस वीडियो में, हम कहाँ पे किस पॉइंट पे उनको क्या बताएंगे। तो उसमें हम यहाँ प्लान एक्टिविटी में लिखेंगे नो अबाउट कॉमन एंड करेक्टिव एंड अनकरेक्टिव नाउन विद एग्जाम्पल। तो ये हम एग्जाम्पल के हिसाब से उनको ये बताना है। उसके बाद में है रेफरेंस पॉइंट, यस। तो प्लान क्वेश्चन एंड आंसर चलेंगे इसमें। तो हम यहाँ पे हर जो हमारी तो वीडियो अब है, आपने जो किया इस पे लिखा हुआ है, उस हिसाब से चला के दिखाओ। मैंने यहाँ पे लिखा है हमारा जो वीडियो है 1 मिनट 40 सेकंड के पास। इधर बिकॉज वो उसकी एंटिटी इस तरह की है, जैसे शुगर है, शुगर एकदम छोटे-छोटे दाने। ये इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी का वीडियो दूंगी, हमने हिंदी में मैंने हिंदी का for the class, and I just created my own website with Wix. Go to wix.com to create इंग्लिश ग्रामर के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे केसेस के बारे में
नीचे वाला वो नीचे वाला ही था, वो हिंदी में ही था। sugarcane, तो you just cannot count them, right? लेकिन पेन जो है वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उसको आप आराम से काउंट कर सकते हो। तो पेन हो गया काउंटेबल नाउन और शुगर हो गया अनकाउंटेबल नाउन, इसे काउंट कर सकते हो। नीचे हमने वीडियो देखा था वो नहीं तो आपने वो नंबर नहीं लिखा है, प्लेलिस्ट में नंबर भी लिखा है। प्लेलिस्ट में नंबर भी लिखना है। आपने 1 by 1 यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन का मतलब ही यही है अब जैसे इसमें लैंड लिंक में 58 लिखा हुआ है, तो आप लाइब्रेरी में 58 तो आपने बेसिकली इंग्लिश पेज नहीं बोला, आपने मेरी लाइब्रेरी लिंक आईडी 58 लिंक 58 डाल सबसे ऊपर आगे ये तो इंग्लिश Common noun and property. लगा सकते हैं, नाम लगा सकते हैं, वाइब्रेट करेगा तो And object. Noun. Noun is united of noun. अच्छा तो इससे कोई बात नहीं ऐसी हो We have to know about. हाँ तो अब इससे पता क्या चल रहा है कि हम क्या क्या गलतियाँ कर सकते हैं। हम कभी लिंक आईडी कोई और खोली और हमने लिखी कोई और। प्लेलिस्ट का हमने कौन सा वाला एक्चुअली यूज किया, 1/2 4 6 जो भी लिखना है वो लिखना भूल गए, तो फिर हम क्लास में जाके कंफ्यूज ही होंगे। तो इसलिए बेटर है कि हम ध्यान से वो हर एक लिखें। और फिर अब आपने यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा है 140 पे आप बोल रहे हो हर्ड इज अ कलेक्टिव नाउन प्लांट एक्टिविटी, और यहाँ पे क्या है प्लांट क्वेश्चन आंसर क्या है ये है 140 पे। अच्छा ये यहाँ पे बदलिएगा, तो 140 पे ये रोक के बच्चों से पूछ रहे हैं हर्ड कौन सा नाउन है, और फिर इसके साथ और क्या पूछ सकते हो, और क्या पूछ सकते हो। इसके बाद में हम क्वेश्चंस कर सकते हैं कि जो ये ग्रुप्स है, मतलब इसमें आया था, मैंने वीडियो देखा है, मैंने लिखा नहीं, तो उसमें ये है कि ग्रुप आया है कि जो टाइटल्स हैं उनका जो पूरा ग्रुप है, तो उसको हम हर्ड वर्ड यूज में ले रहे हैं HERD। तो वो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है इसलिए ले रहे हैं। तो ये हम वहाँ पे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। आगे जो भी एग्जाम्पल है उनमें भी हम ये क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि ये जो कलेक्टिव नाउन है इसके लिए कौन सा वर्ड यूज में आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है, तो ये हम वहाँ पे उनको बता सकते हैं और उनसे पूछ भी सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, आप मुझे बताओ। ये भी पूछ सकते हो कि इसको कलेक्टिव नाउन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा है। इसके बाद में है लास्ट एक्चुअल क्लासरूम एक्टिविटी। इसमें हम ये है कि क्लास के अंदर क्या कराएंगे बच्चों से, या तो हम उनको कोई वर्कशीट दे देंगे कि हम आपको वर्ड्स दे रहे हैं, ये वर्ड्स हैं हर्ड हैं और जो भी हैं, तो आप मुझे बताओ कि ये कलेक्टिव नाउन है या अनकलेक्टिव नाउन है या फिर कॉमन नाउन है, ये मुझे बताइए। तो वहाँ से लिख के बताएंगे अकॉर्डिंग टू वर्ड ये क्या है, कलेक्टिव है, अनकलेक्टिव है या कॉमन। तो ये एक्चुअल क्लासरूम एक्टिविटी ये प्लान हुई कि आप क्या बोलेंगे, फिर बच्चों ने एक्चुअली क्या किया वो आपने वहाँ पे लिखा। जब आपने उनसे पूछा, से फॉर एग्जांपल यू आस्क्ड देम कि व्हाई इज हर्ड अ कलेक्टिव नाउन, उसपे हो सकता है बच्चों का कुछ और क्वेश्चन आ, या उसपे ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे एक्साइटेड हो गए, उन्होंने ग्रुप्स बनाए, उन्होंने कहा क्या आरबी कैन बी कॉल्ड हर्ड, या आपने ये गेम ऐसे प्लान करी। प्लान में तो आप प्लान लिखोगे, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ वो भी आप बाद में नोट करोगे। बच्चों का दिमाग बहुत फर्टाइल होता है, तो वो पूछ सकते हैं। हम इकट्ठे बैठ के वन मोर देन वन है, तो अब हम थर्ड बन गए क्या, तो आप बोलोगे नहीं, you are students or you are a class, collectively you are a class, so how many students, फिर girls का एक ग्रुप बना, boys का एक ग्रुप बना, so these are names. As you rightly said, herd is used for cattle, not for chicken. So this ये conversation weak aspect, no difference.
tell. They also know a lot. ऐसा हमको लगता है कि नहीं पता है, पर उनको पता होता है. So we need to stimulate the mind and उनको confident बनाना है so that they come out and speak. Otherwise they are always in the receiving mode. कि अब बात सर नहीं बताना, सर नहीं बताना. मेरा एक और क्वेश्चन है कि जैसे ये वीडियोस हैं और लर्निंग लेसन्स हैं, one day he is taking the session like for 2 hours, and can children come in the center and do on their own? Yes, absolutely. Definitely they can. Because it's an open source content. Absolutely. Yes, anybody can come. Okay, internet is available. Yes. And you can train children how to cook in computers. Yes. जो ट्रेनिंग आ जाती है यहाँ पे, आप बच्चों को भी दे सकते हो. तो अगर लाइब्रेरी में आके वो अपने आप ही कंटेंट देखते हैं, तो सेल्फ लर्निंग इज व्हाट वी वांट टू प्रमोट इन द लाइफ. ऑब्वियसली अगर तो ये जैसे अगर तो ये एक क्लास फॉर्मल क्लासरूम में हो रही है, फिर तो जैसे इन्होंने कहा वैसे. अगर एक रिसोर्स सेंटर या लाइब्रेरी में हो रही है, तो अकॉर्डिंगली आप वैसी ही एक्टिविटी प्लान करो. आप लिखो कि एक्सप्लेन टू चिल्ड्रन हाउ टू यूज दिस थिंग. जो बच्चों से जो करवाना है वो भी इसमें लिखो. वो आपके लिए प्लान है. So same format can be used for library. वहाँ पे थोड़ी सी प्लानिंग डिफरेंट होगी. जो डिफरेंट प्लानिंग होगी वो कैप्चर करो, वो लिख लो. और फिर जो डिफरेंट हो रहा है क्लास में वो भी क्या करते हैं? क्लास में या सेंटर में? लाइब्रेरी रूम अलग है, सामने हमने बुक्स और कई सेंटर्स पे कंप्यूटर रूम अलग है. तो आप अगर अपने कंप्यूटर से अपने लैपटॉप से ये सेशन ले लो 10 बच्चों का, और उसके बाद आप उनको बोलो कंप्यूटर सेक्शन में आ जाओ. लेट द कंप्यूटर सेक्शन में उनको हेडफोन and then आप अपने बेस फिक्स करो कि मैं इस दिन आपका एग्जाम दूँ. Exactly. तो फिर आप उसका एग्जाम लो, तभी तो आप इम्पैक्ट इनको दिखा पाओगे कि बच्चों में चेंज. तो ये सारी चीजें जो मैम ने कहा ये आप प्लान्ड लिख सकते हो कि बच्चों को दूसरा जो रूम है उसमें हेडफोन लगाएंगे, लिखो, और उनको ये एक्सरसाइज बोलेंगे करने के लिए. और इससे ये लिखने का एक और फायदा भी ये होगा कि आपने सपोज छोड़ दिया तो ये लिखा हुआ है, दूसरा बंदा आके वैसे ही करवा सकता है. It is a resource which has to be there in the center. नाम ही छोड़ा और एक छुट्टी ली थी. और दूसरी जो सब्सिट्यूट आ गई बोला मैं ये प्लान कर रहा था, आपने बस इसके मुताबिक चलना है आज के लिए, क्योंकि मैं आज एब्सेंट हूँ. वो उसके मुताबिक देखिए ऐसा ये मुझे 3 चीज़ें करनी है. तो इट विल बी ए डॉक्यूमेंट फॉर द सेंटर. Very good. Thank you so much. Any other volunteer? Who has the volunteer? We have time. ये आपको ना एक्चुअली इसमें ना डुओलिंगो हमारा टूल है, हम इसको ट्रांसलेट करेंगे गूगल डॉक. नहीं, मेरे को मजा आ गया.
ये जो हमारा सेशन जो चल रहा है इसमें हमारा लैंग्वेज का मतलब क्या है, डुओलिंगो एक लिंक डालेंगे हम इसमें लाइब्रेरी वाले पे और फिर ट्रांसलेट करके दूसरी विंडो पे करेंगे। ये कौन सा टाइप यूज कर रहे हैं? लाइब्रेरी ई-लाइब्रेरी में स्टाइल कौन सा यूज कर रहे हैं? LMS। हमसे ज़्यादा आपको मालूम है आपने क्या बाय डिफॉल्ट जोर से बताओ उसको। अब इसमें हिंदी का करके हिंदी टू इंग्लिश करना है। और इसके साथ में एक टैब और खोलेंगे। परसेंटेज बढ़ा दीजिएगा सर, वो दिख नहीं रहा पीछे। 150 कर दीजिए। आप क्या आप बताओ कैसे बढ़ने? हाँ जी। दिख रहा था 150। कौन सी लिंक आएगी? लिंक है 187 वाली लिंक है। वो तो खोल रहे 1704 में वो तो जो लिंक हो ये बताना। बोलो भी तो क्या कर रहे हो? हाँ, हमने ट्रांसलेट किया है, एक्सरसाइज आई है हमारे पास, तो इसमें हम वुमेन का ट्रांसलेट कर रहा तो उसमें किया है आगे बढ़ने। अब इसमें आदमी का चुनाव करना है तो ट्रांसलेट इसमें मैन्युअली कर देंगे। आप सही हैं। लड़की का ये गेम है बच्चों के साथ। Boy. A boy. अब यहाँ पर हम इसका ट्रांसलेट करेंगे। अब बॉय का क्या होगा? अब यहाँ से कॉपी और पेस्ट कर लेंगे पूरा का पूरा और वहाँ पेस्ट कर देंगे। ऑल टैब दबा के अब इसको चेक कर देंगे। तो बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि आप एक लेवल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो आप अपना इसका एक क्लासरूम बना लोगे तो किसके हर बच्चा अपनी प्रोग्रेस भी देख सकता है। तो वो जिस लेवल तक पहुंचा उसके आगे वो सेव कर ले इसको, फिर वो उसके आगे बढ़े। यही कि हर बार एक लड़का लड़की औरत आदमी से स्टार्ट करें। जैसे मान लीजिए यही चीज आप अपनी लाइब्रेरी में चला रहे हैं, कंप्यूटर में चला रहे हैं और वहाँ एक से ज़्यादा कंप्यूटर है एग्जाम्पल के तौर पर, और दो बच्चे अलग अलग काम कर रहे हैं। एक बच्चे का एक स्पेस होगा ऑफ लर्निंग अंडरस्टैंडिंग, जब वो एक एक चैप्टर या एक एक टॉपिक करते जाएगा और अपना प्रोफाइल बनाइए। प्रोफाइल बनाइए, उसको क्लिक करेगा और उसके लिए आप एज ए टीचर आप उसका एक प्रोफाइल बना सकते हो एंड इट विल सेव हिज प्रोफाइल। जैसे स्टूडेंट विजय है उसका एक प्रोफाइल होगा, दूसरा स्टूडेंट अंजलि है उसका अलग प्रोफाइल होगा, क्योंकि उसका लर्निंग स्टाइल अलग हो, आई मीन पेस या उसकी डिफिकल्टी अलग होगी, वो अपनी पेस पे चलेगा। ये एलएमएस का यही फंक्शनैलिटी है कि वो उसका अपना इंटेलिजेंट आर्किटेक्चर है, वो उसका सेव करता है कि वो क्या क्या सीख रहा है, किस पेस पे सीख रहा है। अगले दिन जिससे वो आएगा वो लॉग इन करके आगे चल सकते हैं। ये चीज़ आप बच्चों को सिखा सकते हैं।
टॉपिक क्या है आपका? टॉपिक क्या है? टॉपिक हमारा एलएमएस है। मेथड हो गया, मेथड हो गया, टॉपिक हो गया। ऐसा है ट्रांसलेट करते हैं। जोहन जोशी जो नहीं है वो टॉपिक लिखा हुआ है। लेसन प्लान में क्या लिखा है? बुनियादी एक चीज और हाँ, तो ये बताएंगे ना जो इधर लिखा हुआ है बुनियादी। अब एक चीज जो हमें सबको सीखने को यहाँ से मिल रही है, हम क्लास में जाके कई टीचर्स आते हैं, वो बोर्ड पे कुछ कुछ लिखते रहते हैं, बच्चे अपना कुछ भी करते रहते हैं। जब तक हम बच्चों से बात नहीं करेंगे, जब तक हम उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो उनको हम कुछ भी नहीं सिखाएंगे। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम बात करें, बच्चों से एंगेज करें, उनकी तरफ देखें। अभी पिछले सेशन में उन्होंने बोला ना आई कांटेक्ट, अभी मैम बता के गई ना, आई कांटेक्ट करेंगे। वी विल एनकरेज देम टू स्पीक, वी हैव टू कीप इंटरैक्टिंग। अगर हम चुपचाप लिखते रहेंगे, एक हमारे भी सर आते थे, वो आते थे और लिखते थे और क्लास बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, उन्हें कोई मतलब नहीं, वो लिखते जा रहे हैं, लिख रहे हैं, रब कर रहे हैं, लिख रहे हैं। जिसने जो सीखना है सीखो, नहीं सीखना ना सीखो। पर एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे सीखें। सो वी हैव टू बी वोकल through the 3 V's that she said. You remember the 3 V's? Very good. फर्स्ट टू बी डिसाइड आवर डेट, कौन सी डेट में हमें कौन सा लेसन पढ़ाना है। हमारा जैसे डेट आज की हमने डेट रखी 13 सितंबर और हमारा टॉपिक था बुनियादी शब्दों को सीखना। सबसे फर्स्ट में हमें ये पता होना चाहिए किस टॉपिक पे हम आज पढ़ाना है, तो हमारा था बुनियादी शब्दों को सीखना। और सेकंड था लर्निंग ऑब्जेक्ट भी हमें पता होना चाहिए। ये था हमारा एबल टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश एंड वर्ड मीनिंग। लिंक भी हमें पता होना चाहिए, आज हमें जाके क्लासरूम में कौन सी लिंक ओपन करनी है। सो लिंक हमारी थी ये पहले हमें ओपन करनी थी 1704 देन 1871 और प्लान एक्टिविटी हमें भी इसमें ट्रांसलेट वन वर्ड टू अनदर एंड आस्क क्वेश्चंस पूछना। उसके बाद हमने ये भी लिखा था प्लान फ्यूएज, इसमें हमने टाइम मेंशन किया है कौन से टाइम पे हमें क्या बोलना है। और एक्चुअल क्लासरूम जो एक्टिविटी होगी उसको हम लिखेंगे बाद में, जब हमारा क्लास पूरी हो जाएगी उसके बाद एक्चुअल क्लास क्या चली थी उसको हमें इसमें डिफाइन करना है। तो एक चीज और, वेरी गुड, एक चीज और मैं इसके साथ आपको कि एक ही टॉपिक जो बुनियादी जो पढ़ा रहे हैं उसके लिए अभी हमने ये एलएमएस किया, पर हम किसी और तरीके से भी पढ़ा सकते हैं। बाइलिंगुअल हो गया, करिकुलम हो गया, एक और था। तो हम देख सकते हैं कि बच्चे कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, उसके अनुसार हम अपना तरीका बदल सकते हैं। सिर्फ 4 ही नहीं है, ये तो अभी हमने इस वर्कशॉप के लिए, क्योंकि मैं ये एम्फसाइज करना चाहता हूँ ऑनलाइन कंटेंट या इंटरनेट का बेसिक स्ट्रेंथ ही है कि कहीं से भी जहाँ जहाँ एक्सपेरिमेंट हो रहा है एजुकेशन, देयर विल बी नंबर ऑफ स्टाइल्स इमर्जिंग, कई बाहर के भी होंगे, अलग तरीके से होंगे, वो सब कुछ हमें मिल रहे हैं, तो लेट अस यूज देम। ये तो और आर जस्ट आई हैव पिक्ड इट अप। जब आप लाइब्रेरी में और सर्च करोगे देयर कैन बी सम अदर स्टाइल्स एज वेल। चलो, वेरी गुड, थैंक यू। हम काम करिए। ऑनलाइन का तो लिखा है, आप कहीं जहाँ इंटरनेट होगा यू कैन स्टार्ट। Good evening everyone. My topic is bilingual. इसमें हम ये करेंगे कि
हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। उन वीडियोस को हम दिखाएंगे। उसके बाद हम एक शीट बनाएंगे जिसमें एक हमारा टॉपिक होगा, उसका लिंक होगा, क्या हमारा उस वीडियो पर लिंक है, देन उसके बाद क्या हमें उससे समझ आया, उसके बाद एक हम पॉइंट पर जहाँ पर उस वीडियो को हम रोकेंगे वो पॉइंट उसके अंदर हम नोट करेंगे। जहाँ पर हमने उस पॉइंट पर रोका है उसके अंदर जितनी वीडियो हमने देखी है उससे उन स्टूडेंट से हम क्या पूछेंगे, उसके अंदर हम क्वेश्चन बनाएंगे। देन उसके बाद क्या उसका रिजल्ट है हम वो शीट तैयार करेंगे। तो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ। आप ऐसे क्लास में चला दीजिए, जैसे आपने लिखा है वैसे ही चला दीजिए। जैसे स्टूडेंट्स को आप पढ़ाओगे वो वीडियो वैसे सिखाए, वैसे ही पढ़ा दीजिए उनकी क्लास में। यहाँ पर हम लिंक डालेंगे तो हमारा लिंक जिस लैंग्वेज में हमें ये लेना है, सपोज इंग्लिश, इसको हिंदी। लिंक डाल दिया तो एक ही आएगा। आपने लिंक आईडी डाल दिया तो ये सब चल रहा है। लिंक को हिंदी एक्शन में डाला है तो हिंदी Hello, my name is Putta. I am your friend. फुल स्क्रीन कर दो। But where were you till now? I was inside June's bag. I jumped out. तुम बाहर हो। हाँ, ये लिंक टू दी प्लेलिस्ट है। सिमिलर अगर आपने सेम वीडियो चलानी तो ऑब्वियसली यहाँ भी वीडियो नंबर 1 होगा या यहाँ वीडियो 4 है और भी वहाँ पे आप जहाँ पे लिख रहे हो तो वहाँ पे आप लिखोगे 1/1 जो भी वीडियो चला रहा हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना प्ले, अगर आप प्लेलिस्ट में देखोगे हमेशा लिखा हुआ है कि यहाँ पे 14 वीडियोस है। ये 1 2 3 जैसे आप वर्ड चला रहे हो 3/14 नए वीडियो ब्रैकेट में लिख सकते हैं। बस्ते में ही था, अब मैं बाहर हूँ। क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? हाँ कुत्ता, तुम हमारे दोस्त बन सकते हो। मैं नीलू हूँ। मैं जानता हूँ कि तो यह अंदर है और वह बाहर। कुत्ता, यह हमारी मुर्गी है। ये उसके चूजे हैं। ओह, अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि बोल रहे हैं, ये कुत्ते को बता रहे हैं कि ये हमारी मुर्गी है, ये इनके चूजे हैं। तो इस पे हम एक लिंक यहाँ पर 1.40 करके स्टॉप कर देंगे। देन उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को रख सकते हैं जिनको हमने ये दिखाया है वीडियो, उनसे हम पूछेंगे कि हाउ मैनी कि कितनी यहाँ पर क्या है, ये जो उस वर्ड का नाम क्या है, उनको हम ये पूछ सकते हैं। अगर वो स्मॉल है, उनको नहीं पता, उसको वर्ड्स की पहचान कराने के लिए। और वर्ड्स का कलर इन दिस जो इनके साथ बचे हैं, इनका कलर क्या है, कलर भी बता सकते हैं। इनके साथ कितने चूजे हैं, इसका नंबर पूछ सकते हैं, तो उनको नंबर का भी थोड़ा सा पता लगेगा कि 4 नंबर है। देन इसके बाद बड़ी है, उसका चूजा छोटा है। हाँ, मेरा एक इनपुट यहाँ पे ये है कि क्योंकि आपने कहा कि आप इसको यूज कर रहे हो और इंग्लिश तो मे बी जो आप दूसरे क्वेश्चन पूछोगे वो मे बी आप इंग्लिश वाली वीडियो में रोक के पूछो। इंग्लिश वाली just thought which came into my mind. I'm just speaking out. So basically, when you are running this, you can actually alt tab and go there and run it till 1.40 in English. And then ask the question. Just a suggestion, in case while you are trying to teach English, or maybe you can
put a question in Hindi and then tell the student, okay, give me an answer in English. So just view the English video. So ऐसे का innovatively उसको So this is inside and that is Tires. This tire is bigger. This tire is smaller. यहाँ पर हम ये पूछ सकते हैं this tire is small in which side? यहाँ से हम side भी पूछ सकते हैं। yeah, anything. It is your This tire is smaller and smaller tire in which side? Your according to जिस पर्सन से पूछ रहे हैं उस पर्सन से पूछेंगे कि आपकी किस साइड है ये जो स्मॉल टायर है किस साइड है, राइट है या लेफ्ट? Chinu, no tire. Let us play with balls. Okay, let us play with balls. There are 2 balls here. Look, this ball is bigger. This ball is smaller. यहाँ पर हम ये पूछ सकते हैं how many colors in bigger ball? Bigger balls में कितने कलर है हमारे पास? 3 colors. There are 3 colors: yellow, blue, and red. And how many? What's the color of small ball? ये पूछ सकते हैं. That's all. कितना ही है? जैसे आप उससे पूछ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग अपनी आप लिस्ट बना लीजिए, ठीक है? कहाँ पर इसका पॉइंट रोकना है, जिस जगह पॉइंट रोकना है, जो पिक्चर्स आपने उनको दिखाई है वहाँ पर उतने ही पॉइंट बनाना जितना उसके अंदर ही है, जितना वीडियोस में आगे नहीं बनाना है, हाँ जितना उस वीडियोस तक है। देन उसके बाद अपना रिजल्ट दिखा देना कि स्टूडेंट्स ने क्या उनका रिस्पॉन्स रहा, लास्ट में आपको डाल सकते हो। कौन सा ग्रुप रहेगा? Yeah, अच्छे you have to नहीं मैंने पूछ किया था सेवरल टाइम्स आई चलो आप आ जाइए, थोड़ा हमें कॉन्फिडेंस होगा। Hello, myself Ajay Kumar Das. I am working in the last 2 months. ठीक है, I am very happy जो यहाँ आप लोगों के सामने मुझे प्रेजेंट होने का मौका मिला। जस्ट आई एम गिविंग यू दिस थिंग्स। सो मैंने सबका देखा 1 by 1 देखा है, जो जिसका भी है उनका सीट लेकर के मैं इनके साथ सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कोई एनीवन गिव मी जस्ट सीट। This is a sample sheet. You can use this also. Sample sheet किस-किसने पढ़ी? Truthfully बनाना। And instruction sheet किस-किसने पढ़ी? आपने कुछ भी नहीं पढ़ा? No sample sheet. अच्छा ठीक है। जब हम स्टूडेंट्स को कुछ बताते हैं, we expect them to follow instructions. Similarly, we should also first get into that. सबसे पहले हम जो इसमें जाएंगे चैप्टर वाइज से स्टार्ट करेंगे, जो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है। सबसे पहले इनका जो है ई स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू हम जाएंगे। ई लाइब्रेरी पे हम अपना सेशन करिकुलम चूज करेंगे, जो हमें क्या करना है। ई लाइब्रेरी के थ्रू हम जा करके वहाँ पे हम चूज करेंगे कि आपको किस सेक्शन में जाना है, कहाँ पे जाना है। यदि हमें जाना है लाइब्रेरी के थ्रू तो लाइब्रेरी में हम जाएंगे। ई लाइब्रेरी में जाकर के फिर हम उनको वहाँ पे सर्च करेंगे एग्जैक्टली हमें करना क्या है, वहाँ पे हमें क्या आगे के लिए स्टूडेंट के लिए कौन सा प्लान एक्टिविटीज रखना है, उनके पास क्या लिंक्स थ्रू होगा, कैसे उनको बताना है और कैसे उसका आउटकम निकलेगा। उसके बाद रिजल्ट होगा कि क्या उन बच्चों के साथ हमें लास्ट जो होगा कंक्लूजन पार्ट होगा कि बच्चों से भी निकल के आएगा कि बच्चों ने क्या सीखा वहाँ पे। नाउ इसके बाद हम उनके यहाँ पर हमें सर्च करेंगे। यदि इंग्लिश में जाना है इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में या साइंस में तो साइंस में जाके यहाँ पे हम सर्च करेंगे। ये तो सेक्शन प्री फिल्टर। आप डायरेक्ट मेन लाइब्रेरी में साइंस हाँ साइंस तो वही मैं कर रहा हूँ।
ये तो ऑलरेडी फिल्टर किया हुआ है। कुरिकुलम नहीं, ई लाइब्रेरी में सर्च एक चीज में वो हम मैम के साथ बैठ के डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या है कि याद रखना थोड़ा मुश्किल है। indiaschool.com करके वैसे रखें, या एक तरीका ये भी है कि हम readindia.indiaschool.com करें तो डायरेक्टली लाइब्रेरी खुलेगी, या ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे हो जाएगी। eSchool.tube भी है, readindia.eSchool.tube। like to have Read India name. And also one of our donors was saying like we set up centers on behalf of Amazon. Amazon was saying whether their logo can also because they are paying money for this, so we also do the brand. So we will have one page, इसको URL कहते हैं, तो ये पूरा वेबसाइट का कंप्लीट एड्रेस होता है, इसको URL कहते हैं .com। तो आपको एक सिंपल टू रिमेंबर URL दे देंगे पूरे सेंटर्स को, जैसे मान लीजिए readindia.eSchool.tube, क्योंकि eSchool.com डोमेन नेम नहीं हमें मिला, indiaeschool.com मिला, या eSchool.tube जैसे YouTube है, ऐसे सेम पेज है, मतलब बिल्कुल सेम रेप्लिकेट हुआ है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होगा। वो हम एक बारी रीड इंडिया के साथ बैठ के डिसाइड कर लें, सो दैट सभी वही यूज करेंगे, वरना कंफ्यूजन होता है। जैसे सिंपल टू रिमेंबर है readindia.eSchool.tube, तो खुलिए डायरेक्टली रीड इंडिया का पेज खुलेगा, उसमें रीड इंडिया का लोगो होगा, डोनर का लोगो होगा, और रीड इंडिया की स्कूल करके लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली ये पेज आ जाएगा, तो ढूंढना नहीं होगा, सीधा हम ये टाइप करेंगे readindia.eSchool.tube, वो मैम से पूछ लेंगे, जो भी डिसाइड हो जाएगा तो उनको बताया जाएगा, तो लाइब्रेरी खुल जाएगी। उसके बाद आप फिर उसके आगे का यही काम The main part is कि आप जब भी सबसे पहले सर ने बताया कि ऑलरेडी एक्सप्लेन जो जब भी आप उनका डोमेन खोलेंगे, आप सिंगल वाइज नई डोमेन खोलेंगे eSchool.com करके readindia.eSchool. जो इनका साइट है उसके थ्रू है वो पेज खोलेंगे। समटाइम यदि डोमेन काम नहीं करता है, डोमेन इज नॉट वर्किंग, देन वी हैव टू डू वन थिंग, हम लोग उसको स्लैश दे करके ऑब्लिक करके डबल टैप हम लोग उसको खोल सकते हैं कि जब एरर पेज आ जाए या उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो हम आगे उसको रिफ्रेश करके हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो जहाँ तक पता है कि बस जब भी हमें किसी चीज पे जाना है कि लाइब्रेरी के थ्रू हमें सर्च करके जो हमें पर्टिकुलर जो हमें कोर्स जो हमें एक्टिविटी कराना है उस एक्टिविटी का पेज खोल करके उन बच्चों को हम समझाएंगे। तो नाउ इसके बाद हम ई लाइब्रेरी में जा करके जो भी सेशन हमारा होगा, जैसे कि सर्च लाइब्रेरी में, राइट, इसके बाद फिर हम इसमें करिकुलम पे जाएंगे, अदरवाइज तो लाइब्रेरी में ही हम लोग जाकर के कौन सा कोर्स करेंगे, जैसे कि इंग्लिश का है इसके नीचे इसके आगे में हमें ये कौन सा कोर्स करना है, जैसे हमें दिमाग बैठाना है कि कौन सा प्लान करना है, कौन सा एक्टिविटी किसके अंदर में करना है, जैसे में इंग्लिश में एक्टिविटी करना है या कोई साइंस में करना है, लिटरेचर में करना है, कोई भी चीज यदि हमें माइथोलॉजिकली पे करना है या जैसे हमें केमिस्ट्री पे करना है तो केमिस्ट्री पे सर्च करेंगे। केमिस्ट्री में सर्च करने के बाद जब हमें वीडियो क्लिपिंग उनको दिखाना है जो लिंक के थ्रू करना है या एक्टिविटी गेम करवाना है मैटर में, तो जैसे हमें वीडियो क्लिक करना है यहाँ लिंक इसके एक मिनट चले तो चले 100 of 100 ईयर थे। अकाउंट नंबर दे दे भाई से एक कम ये चीज को जैसे आई थिंक कि हम लोग मैं ये जानना चाह रहा था कि लेवल ए पे ये चीजें आनी चाहिए, लेंथ, स्मॉल, बिग, वॉल्यूम, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, ये चीज
ये करिकुलम सेक्शन में मिल जाएंगे आपको। उर्दू का सिलेबस है ना? उर्दू का सिलेबस तो नहीं होगा, जैसे हम बट नहीं पढ़ सके। उर्दू सब्जेक्ट शायद नहीं है, अभी नहीं है, बट जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है वो बैकएंड पे काम करके हम कर सकते हैं। और दूसरा उसका एक तरीका है, जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी की जो उर्दू की बुक्स हैं वो आपको मिल जाएंगी सारी ऑनलाइन ई बुक्स ग्राउंड लेवल से जैसे हम पढ़ाना था वो चाहिए। अभी उर्दू का कम है, दैट इज अ फैक्ट, लेकिन बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट वी कैन डू दैट नाउ। अप टू दिस इज राइट नाउ 12th। हां, those are classes only। हाँ नहीं, यू विल सबसे मैसेज आने लगते हैं ना, जैसे आप मान लीजिए हाँ लेवल में 12 लिख दीजिए ना, जैसे लेट मी शो यू, ये मैं हटा देता हूँ लिंक आईडी, लेवल में मैं 12 लिख दूँ। ओके, सो ऑल सो या एंड ऑन ऑल, क्योंकि अभी हमने जो फिल्टर लगाया सिर्फ 12th पे लगाया, बट 12th प्लस सम क्लास 12 इन इंग्लिश लैंग्वेज, नॉट इंग्लिश सब्जेक्ट, ये लैंग्वेज है और ये सब्जेक्ट है। सो ये कॉम्बिनेशन यू कैन वर्क आउट, जैसे जो ये है मान लीजिए जैसे कंप्यूटर में लर्न एक्सेल, ये हाँ बिगनर कोर्स, तो और इंग्लिश में, सो वंस यू क्लिक इट यू विल गेट सीरीज ऑफ वेरी गुड कंटेंट, दिस इज वेरी एक्सीलेंट कंटेंट। जैसे मान लीजिए ये है, तो एक्सेल विल ऑटोमेटिकली शो, अभी you just try it. Actually need one more session with Ma'am and Sir. So for today, I would like to bring out the highlights of today's session. First of all, let me thank both of you, Mr. and Mrs. Rana, for bringing up this wonderful session for all of us. As trainers, as master trainers, as the director and other team members, Screenshot we all thank you for that. And I'll just sum up the highlights. First, we started with introduction to internet, which was very informative because you showed us with the diagrams. You know, till now, cloud, I'm using iPhone. Cloud, but what is actually cloud? I've always wanted to know what are clouds. Still, all बाकी सब कुछ आता था, but cloud as in like what? I know that it's getting stored there, but how do you retrieve and how do you send information there? That was not clear, so thank you for that. Then we had introduction of website, which is your website, wonderful website. We really congratulate for you for that. And then we had a group method and practice exercise for all of you. You got written material, which is a very good prompt given by you that they have something in hand to work on. And one new word that we got to understand today other than museums was curating. So curating is like we do this work ourselves, like we always collect videos and links and everything for our trainings and presentations, but the vocabulary is new. So आप लोग सब प्लीज यूज करिए ये वर्ड्स, जब आप भी आपकी फर्दर ट्रेनिंग्स देंगे उसको जरूर इस्तेमाल करिए, बिकॉज दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू, जो पुराने याद करिए हमने जो सेशंस पिछले 2 दिनों में किए हैं उसमें था इंक्रीज योर वोकैबुलरी एवरी डे. सो यू इंक्लूड दिस वर्ड टुडे and use it every day and give it to your further trainers and to masses. Then we had a business, we talked about business skills and it's been written verbal and making plans. Then we had very good videos. Reference point, this is something, a new word again, new vocabulary again, that we would stop video anywhere. And we know that this is time, this is like minutes and these are seconds. But you gave a new vocab again for that, that this is the reference point. So this is again a new vocabulary. So you can sum up here like what new vocabularies you are learning in each session. Then we had a very useful training. Okay, I would like to say that this session ma'am is organized especially for the master trainers because they have a target of training further 50 trainers. So for you all, this is so good. I mean, can I know that how many of you are computer trainers here? Like four of you.
बेनिफिशियल था? बोलेगा अपनी सीट से बोल दीजिए। किताब जाओ बिकॉज़ मुझे जो समझ में आया मेरी अलग नॉलेज है। आप एज ए ट्रेनर आप लोगों को कितना समझ में आया कोई एक अगर बता दे। किताब बता दो। मैम ये होता है कि हमारे लिए अभी तो आपने सर ने जैसे समझाया उस तरीके से, लेकिन बाद में एक के बाद एक ट्रेनर आता चला गया, जो डाउट क्लियर नहीं हुआ तो डाउट भी क्लियर हुआ। Very good. That was the that I have to bring up in the conclusion that how we sorted our doubts. मतलब मैम ने यहाँ तक कि सर को भी बुलाया कि बिकॉज आप आगे ट्रेनिंग देंगे, मास्टर ट्रेनर्स के भी ट्रेनर है आप, so we should know that you have everything clarified in this session only. And then again there was a new word, virtual e-class. Virtual e-class का concept बहुत अच्छा है क्योंकि आप लोग सेंटर टू सेंटर कनेक्टेड हैं। So आप लोग आपस में कितने अच्छे से इसमें रेफरेंसेस कलेक्ट कर सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। This is absolutely wonderful idea, and then further presentation by each. This was complete participation, interactive and participative approach where all the groups were given a task, activity was given to you based on the workshop today, and you all could do it. And with that, each group sorted out their problems, and with your problems, we could also solve our problems. And I will conclude this session again as a very good. The word you have given is usually हम लोग E method use करते हैं या usually क्या बोलते हैं हम लोग? E-learning. E-learning. But here we can also use digital, which is like more in word these days that digital learning. So whatever you like, you can use e-learning or digital learning. And this is excellent for master trainers, हम लोग team, सबके लिए बहुत beneficial था. So thank you so much for this. And one more message. Homework कुछ दिया गया था फिर आप लोगों को end of the first 2 sessions that आप लोगों को लिखना है. How many of you have written? मैम ने गीता मैम ने एक homework दिया था that each day you have to prepare कल पिछले दिन का जो आपने सीखा. कितने लोगों ने की हैं वो शीट्स? कल सुबह वो कोई क्लासरूम में नहीं आएगा अगर आपके पास पिछले 3 दिन की शीट्स नहीं होंगी. This is your homework for today. I am taking the privilege on ma'am's behalf. Ma'am, am I allowed? Please, कल वो लोग ट्रेनर्स अंदर नहीं आएंगे अगर आपके पास 3 दिन की शीट्स नहीं होंगी. Because this is we have to get the feedback कि जो इतना बड़ा प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज हुआ है वो आप लोग सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, या आपने क्या नॉलेज गेन किया, आपके डाउट्स हैं वो भी प्लीज डू इट सीरियसली. थैंक यू सो मच. So, Geeta ji, should we emphasize readindia.eschool.u? Yes, yeah. मैं तो ग्रीन पार्क से आता हूँ, बीच में क्लिप फंस जाते हैं ना, वो स्टक हो जाता है दोनों को. Silence, please. Okay, yeah. So let us formalize, finalize that. One is Read India. Dot. इसमें इंडिया नहीं है, इसमें e-school लेकिन .tube है इसमें. एक तो ये URL, दूसरा URL है Read India. .India e-school. .com. तो इन दो में से we have to find out. दोनों आइडेंटिकल है. आप ऐसे करिए, इंडिया हटा दीजिए, ये कर सकते हैं. So let us finalize that so that everyone has the same nomenclature to remember. So we will use read.indiaeschool.com. read.indiaeschool.com. फिर से मैं लिखता हूँ read.
.india, इंडिया e-स्कूल एक वर्ड है .com। तो जब आप ये टाइप करोगे यहाँ पे ब्राउजर के एड्रेस बार में, ऑटोमेटिकली आपको ये पेज खुलेगा और लाइब्रेरी भी खुल जाएगी। तो वहां से आप आगे प्रोग्रेस कर सकते हो। ठीक है, अभी खुल जाएगा, खुल जाएगा। वो यूजर ने पासवर्ड मांगेगा, वो सर्कुलेट कर देंगे, गीता जी में सर्कुलेट। वो हर सेंटर का अपना यूजर नेम पासवर्ड हो सकता है, आप वो यूज कर सकते हैं। तो जैसे जो अभी ये जो मैं एग्जांपल्स यहाँ पिक किया आज स्टाइल्स के, वो सिर्फ इंग्लिश के बट सारे सब्जेक्ट्स हैं, लाइक कंप्यूटर्स में वेरी गुड कंटेंट, सेल्फ लर्निंग, एक्सेल, वर्ड, राइटर, ओपन सोर्स के, पावरपॉइंट के। एक और सेशन रखनी है, ये अपने सेंटर्स में एक हफ्ता 10 दिन तक जब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस करने के बाद, then we will keep the session so that it will be a refreshing training plus addressing the challenges. Exactly. Yeah. So that we will keep in our office. Yeah. Okay, done. Okay, thanks a lot.